So let us continue with our previous discussion. Okay, we have already completed the orthogonal matrix part. Okay, so and I think we have just started the application of system or application of this matrix in electric circuit. Okay, so this topic is totally dependent on only two laws. One is Kirchhoff's current law and next is Kirchhoff's voltage law. Okay, so what is the Kirchhoff's voltage law? The algebraic sum of voltage drops in a closed loop in a closed circuit is equal to the total electromotive force. Okay, the sum of all the voltage drop is equal to the resultant electromotive force or the battery or the battery. And current law is what? The total current in is equal to total current out. Okay, in is equal to out. That in that way you can remember that result. And I think we have completed this first example. Okay, so okay, let me take few more examples. एक और example मैं लेता हूँ. ये फिर से रिपीट करना है क्या? करना है रिपीट इसके आगे बोलो. You want me to solve this again? यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, आगे का सोल्यूशन मैंने आपको डायरेक्टली दिखाया था. सॉल्व करना है आगे, यस और नो? यस, इसके आगे सॉल्व करना है या नहीं? Sir, your voice was cut, I guess. Maybe. Okay. Am I audible now? Okay, there's a network problem. Wait. Okay. So, is this visible? Okay, yeah. Yes, sir. Okay, so ये एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में. ओके, और इसके आगे बस मैंने डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन दिखाया था. सो यू वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन या डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है? इसको आगे सॉल्व करना है या नेक्स्ट क्वेश्चन लूप? बोलो. No, sir, we understood that. Okay. So the solution is already there in the in this PDF. Okay. So this is your augmented matrix. Now we have to just convert this augmented matrix into echelon form. So I think you need only one operation R4 on R4, that R4 minus R1. Then you will directly get this echelon form. So here you can see there are 4 non-zero rows. Okay, and therefore from this you can write the rank of augmented matrix. Okay, so the rank of, just 1 minute. We just partition. So the rank of this augmented matrix is 4 because there are 4 non-zero rows. And if I hide this last column, then you will get rank of A. Rank of A is also 4. So rank of A is equal to rank of AB. Therefore, this system is consistent. Okay, so if this system is consistent, now we have to just check whether the system has unique solution or infinite solution. So for that we need n. n क्या होता है? Number of variables. कितने variables थे आपके पास? There are 5 variables. I1, I2, I3, I4, I5. Okay. So it is less than the number of variables. Therefore the given system has infinitely many solution. ठीक है? And how you find that infinite solution? We have to again rewrite that linear system from final echelon form. Remember the steps. Rewrite the linear system from final echelon form. So you will get this. So here you can see there are 4 equations. There are 4 equations and 5 variables. Okay. Therefore this difference is 1. ये आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमेशा क्या होने वाला है? नंबर ऑफ इक्वेशन लेस आने वाले. In every infinite solution you will have less number of equations. ठीक है, 5 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, डिफरेंस 1 का है. तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो आपको किसी एक वेरिएबल को असाइन करना होगा. ओके, सो यू कैन असाइन एनी वेरिएबल. सो लेट मी असाइन I5 as t where t belongs to r. So from that you can calculate I4, I3, I2 and I1.
ठीक है. सो सिंपल कैलकुलेशन इज देयर. सो विल गेट दिस ऑल वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ t. सो I5, दिस इज योर I4, दिस इज I3, दिस इज आई गेस I क्या ये नहीं सॉरी, दिस इज आई थिंक I2 and where is the I1? This is I1, this is I2. Okay, done. Okay, yeah. Now let me take one more example on this. तो यहाँ पे आप देखो why we don't need or why we have not used that voltage law. Can anyone tell me voltage law is क्यों हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है? वोल्टेज डाउन के लिए Sir, there is no cell, any cell. बैटरी नहीं है ना वहां पे सर्किट में, तो वोल्टेज लॉ वैसे भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है. और एट द एंड आपको ये इंश्योर करना है, ओके, एट द एंड आपको ये इंश्योर करना है जितने वेरिएबल्स है, ओके, मिनिमम उतने इक्वेशंस आपको चाहिए. अगर आपको वो करंट लॉ से भी मिल जाते हैं दैट विल बी ओके, नो नीड टू अप्लाई दैट वोल्टेज लॉ. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जितने आपके वेरिएबल्स है उतने इक्वेशन आपको कैसे भी करके जनरेट करने, मिनिमम दैट काउंट. उसके आगे भी आते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. So now let me take one more example on the same process. ठीक है. Let me take this. Same ही है. तो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी ऊपर है इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ. या ओके. विजिबल है अभी ये? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. So let me continue this. आप एक रफ पेज लेके बैठो, नो नीड टू राइट दिस होल सॉल्यूशन. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ड्यूरिंग द लेक्चर्स कि जो कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ बस वो आप करने की कोशिश करो, ओके. या क्विकली जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उस हिसाब से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि उतना टाइम आपको भी नहीं मिलेगा मतलब एक्सप्लेन करने का और राइट करने का इन डिटेल में. तो आई विल शेयर दिस होल पीडीएफ, बट साइड बाय साइड आप कैलकुलेशन करते जाओ, ओके, या इक्वेशन लिखते जाओ, इन बिटवीन फास्ट उसका कैलकुलेशन करो. दैट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब आप नहीं लिखोगे ना तो फिर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट मी. सर इसके पहला वाला एग्जांपल लिखना था क्या? नहीं ठीक है, अभी नहीं भी लिखा तो भी ठीक है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ जब भी कोई नया एग्जांपल मैं लेता हूँ ना, तो आप उसमें मतलब रफ कैलकुलेशन जैसे आप करते हो ना, क्वेश्चन देख के बस रफली चेक करते हो कि क्या आंसर आ रहा है, उस हिसाब से भी आप लिखते हो ना तो भी चलेगा, क्योंकि इन डिटेल में लिखने का टाइम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. ठीक है. ओके, जस्ट 1 minute, just 1 minute, I got one call. Okay. So now question number 2. Determine the currents in the network given below. Okay. तो आपको करंट कैलकुलेट करना है. इट मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है एट द एंड? कैन यू टेल मी? I1, I2. I1, I2 और क्या अननोन दिखाई दे रहा है? I1 भी एक करंट है, I2 भी एक करंट है और आई थिंक I3 भी है. ओके, I3. हाँ, आई थिंक ओके, दिस आर द ओनली 3 करंट. सो बेसिकली आपको I1, I2, I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी. सो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3, मिनिमम कितने इक्वेशन चाहिए आपके पास? मिनिमम 3. 3 के आगे जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मिनिमम वी नीड 3 इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3. ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द करंट लॉ. ओके, सो बाय Kirchhoff's current law. Okay, nodes are given in the diagram itself. So at node 1, can you tell me the Kirchhoff's current law? The total current in current कौन सा है यहाँ पे? I1 plus I3. I1 plus I3 is equal to I2. I2. Okay, ठीक है. What is at node 2? सर I1 plus I3 equal to I2 ऊपर नोड 1 पे. हाँ सॉरी. And what is at node 2? इन करंट क्या है आपके? I2 plus I1. I2 only I2. I2 is equal I2 to is equal to. I1 plus I3. That's तो बेसिकली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है? दोनों नोड से आपको एक ही इक्वेशन मिल रहा है, बिकॉज बोथ आर सेम ना.
Yes, sir. We have तो to apply बेसिकली KVL. किरचॉफ्स करंट लॉ से आपके पास अभी एक ही इक्वेशन आ रहा है, सो लेट मी कॉल इट एज 1, है ना, एक ही इक्वेशन मिल रहा है। सो तो यहां पे आपको कंफर्म समझ में आ रहा है, नाउ आई नीड वोल्टेज लॉ, क्योंकि दिस करंट लॉ इज नॉट इनफ टू गेट दोस थ्री इक्वेशंस, मिनिमम थ्री इक्वेशन। सो नाउ लेट मी अप्लाई वोल्टेज लॉ बाय Kirchhoff's voltage law. Remember, this law is only for a closed loop with the battery. Okay, so there are two closed loop. One is here. Let me highlight by this green color. और ये इस वे से, this is your first closed loop and second is ऐसा करंट जा रहा है ना, this is your second closed loop. समझ में आ रहा है? So there are only two closed loop. So for first closed loop, okay, so for first closed loop, what is the equation? क्या होता है ये law? What is this law? Law क्या है? Algebraic sum of voltage is equal to the voltage drop across each node, sum of the or algebraic sum of voltage drop across each node is equal to result is equal to battery EMF. Okay, तो यहाँ पे बैटरी क्या है आपकी 20. So this 20 is equal to what? Battery is equal to what? The voltage drop across node. Okay, so here you can see the first node 40 resistance का. इसमें से कौन सा करंट जा रहा है? इसमें कौन सा करंट जा रहा है? क्या होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? What is the voltage drop across resistance? हाँ, IR. Correct. Voltage drop across resistance is equal to IR. Okay, so let me write this value for this first node. Okay, so at this node resistance आपका क्या है 40, यानी करंट कौन सा जा रहा है उसमें से I1 बोला ना, कोण काय नाही करत तू ना, बरं, हां ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट प्लस 30 I2. हाँ प्लस, हाँ ये रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट I2 जा रहा है, सो 30 I2. ओके, सो कैन यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन? ठीक है, नहीं तो रहने देते, रहने देते. 4I1 plus 3I2. सो लेट मी राइट इट फॉर सेकंड क्लोज लूप. सिस्टम को नहीं चेंज करते, ठीक है, अभी इसमें यहाँ पे कुछ इफेक्ट होगा नहीं. ओके, सो नाउ फॉर सेकंड क्लोज लूप द टोटल वोल्टेज इज 40, सॉरी बैटरी इज 40, है ना. हाँ, नाउ टेल मी फॉर दिस फर्स्ट 30 I2 ना, 30 I2 plus 40 I3. 30 I2 plus 40 I3. plus 40 I3. Okay, so now this is my second equation and this is my third equation. ठीक है, okay, and now so from equation 1, 2 and 3, can you directly tell me the augmented matrix? A comma B बोल सकते हो डायरेक्टली? Yes, sir. बोलो. फर्स्ट कॉलम इज फॉर I1. टेल मी द कोएफिशिएंट्स. 1, 140 and 1 140 and 0. 40, 0. 0. 140 and 0. नेक्स्ट इज फॉर I2. -1. हाँ, अभी इस टाइम पे इसको शिफ्ट करना होगा, जिनको नहीं पता है, जैसे आई कैन राइट इट एज I1 minus I2 plus I3 is equal to 0, and let me call this as my equation 1. Yeah, now -1 30 30. 30 30. What about next? 1 0 1 0 40. 1 0 40. 40. एंड राइट साइड में क्या है? I1 I2 I3. 40. नहीं I1 कैसे आएगा? I1 I2 I3 कवर हो गए राइट साइड में. Sir, 0, 0. 0 तो 20 फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 20 है, थर्ड में 40 है. 40. दिस इज योर Yes. augmented matrix. Okay, solve this now. आपको है इसके आगे. Solve this quickly. Now you can divide this by 10 and can do that calculation.
So let me just simplify this calculation. Let me divide R2 by, किससे कर सकते हो आप डिवाइड? 10 से ना? Yes, sir. And R3 by 10. ठीक है? So this become 1 minus 1 1 0 as it is. ठीक है? So next is 0. This is 4, this is 3, this is 2, next is 0, this is 3, this is 4, this is 4. Okay, now convert this matrix into echelon form. So sorry, कुछ तो मिस्टेक हो गई ना यहाँ पे मेरी, एक मिनट. सर आंसर मिस्टेक हाँ, यहाँ पे 4 चाहिए था, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0. Okay, now convert this into echelon form. So what is operation on R2? On R2 that R2 is 4R1. 4R1. So this become 1 minus 1 1 0. Okay. Next is 0. Can you tell me the next number? 3 minus 4 times minus 1 7. Okay. Next minus 4 na. Next 2. There is no change in third row. Okay. Now still it is not in echelon form. Okay. This is the non-zero number. इसके नीचे का एलिमेंट आपको 0 करना है. Sir, R3 is equal to 7R3 minus 3R2. तो मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ. इसको 1 करने की जरूरत नहीं है. अगर आप करते हो तो करो. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. बट ठीक है. ओके, आई विल डायरेक्टली मेक दिस एंट्री 0. तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड माइनस इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ. ये एक वे होता है हमेशा आपके पास. दिस इज द फास्ट वे. सो 1 minus 1 1 0 0 7 minus 4 0. Okay, now 0. This is 0. Yes, what about this? 40. Huh? 40. 40. 40. 40. And what about last entry? 4. 4. 22 चेक करो एक बार. 7 into Sir, 4. second row both columns there should be 2. एंड माइनस क्या था ये? माइनस 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 प्लस होगा ना ये. सो प्लस 12. सर वो -4 के बाद 2 है ना सर? कहाँ पे? हाँ यहाँ पे. सॉरी सर. अभी करेक्ट है ना? सर चेक. तो नहीं सर, वो लास्ट 4 की सर जगह 4 4 की जगह पे क्या आ रहा है? 22 22. 22. फ्रैक्शन में जा रहा है क्या ये? ठीक है. ओके, सो नाउ दिस इज इन echelon फॉर्म विच इज इन, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, एक बार चेक करो अगर कुछ मिस्टेक है तो बोल. विच इज इन echelon फॉर्म. ओके, हाँ. सो व्हाट इज रैंक ऑफ दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? सर 3 3. And if I hide this last column, still rank is 3. 3. Okay, therefore this system is consistent. Therefore Stand. given system is consistent. Okay. and unique. Huh. And this value is also equal to number of variables. Therefore system has unique solution. Okay, now let me so to calculate that unique solution, let me rewrite that system from this final echelon form. So which is I1 minus I2 plus I3. एक मिनट. ओके, कंप्लीट करो. जस्ट टेल मी द फाइनल वैल्यूज ऑफ I1 I2 I3. यस, किसने किया है सॉल्व? Sir, I1 is 0.05, I2 is 0.6. No, And I2 tell me in fraction. Tell me in fraction. I have some doubt in this question. I1 is equal to 1 by 20. Okay. सर I1 is 0.05. No, tell me in fraction. That is 1 by 20. I need fraction. Answer in fraction. I3 is 11 by 20. Correct. And I2 I2 is 21 by 35. 21 by 35 and I1 is
1/20. 1/20 20. ठीक है. Yes, sir. Right. ओके कैलकुलेशन में कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं है ना? आई हैव सम डाउट इन दिस क्वेश्चन. हाँ No, sir. ओके साइन का भी ऐसा इसमें कुछ कन्वेंशन नहीं रहता ना? ठीक है. Sir, the KVL equations we have derived, in the second loop, we should consider the I1 also, no? Because it is passing through the 30 ohm Yes, and sir. 40 ohm also. So I So took the that will be equations I1 wrong, minus I2. second and third. विच इक्वेशन 3 या इक्वेशन 2? Sir, equation third. Equation. हाँ तो इसमें क्या हो रहा है? 40 है. Sir, I2 because I1 also will pass through the 40 ohm resistance. I1 but I1 is splitting in No, I2 no. and इसमें क्या होता है? देखो ये नोड आ रहा है ना, नोड के बाद कोई गारंटी नहीं कि ये कहां से पास करेगा. आप ये मुझे बोलो इस रेजिस्टेंस में और इसमें कोई नोड है क्या? तो I3 कंफर्म पास हो रहा है 40 से. So we should consider I1 also, sir. नो no, I1 is splitted into 2, I2 and नोड minus के बाद I3. वो करंट कहां पे जाएगा? दैट वी डोंट नो. जितना मुझे पता है अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट, नोड के बाद There आप is नहीं mentioned लेते. I3, then it's flowing from there. हाँ Sir, so- but the sign, हाँ. according to sign convention, अगर करंट और Negative आता ना? करंट रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है तो सर वो माइनस साइन लेते हैं, मतलब -40 I1 आएगा. हाँ सर माइनस आता. Yes, माइनस sir. आते हैं You have to सर. take sign करंट और convention. रेजिस्टेंस एक डायरेक्शन में साइन होगा. कन्वेंशन गलत हो रहा है सर. But यस सर, यस. साइन कन्वेंशन. minus. ओके आपका क्या कहना है? sir, वो ठीक है. -40 I1. We did correct. Nothing is wrong. Sir, everything is right, sir. हाँ बिकॉज आई Nothing डोंट is थिंक wrong, सो sir. कि इसमें ऐसा, क्योंकि अभी ये एक फ्लो होता है, आपको एक ही फ्लो में चाहिए करंट, एक फ्लो में जा रहा है ना करंट, तो इसमें ऐसा कोई साइन कन्वेंशन नहीं रहता. Sir, दिस we इज consider anti-clockwise direction. इन जनरल वी ऑलवेज कंसीडर एंटी क्लॉकवाइज इन एवरी सर्किट. ओके So we consider it any way, but the equations are going to be same. हाँ Yes, sir. Right. अगर आंसर में इफेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. बट अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर भी लेते हो तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे ना, तो फिर वो पॉजिटिव होगा ना एट द एंड. -40 आएगा आगे, है ना? Sir, Yes, yes. Sir, no Okay. sir. ऐसा आपका साइन कन्वेंशन के हिसाब से इतना चेंज होगा, ये मुझे बस बोलो. आई एम नॉट दैट मच गुड इन दिस फिजिक्स पार्ट, सो लेट मी जस्ट टेल मी. हाँ No sir, करेक्ट. it's not going to be like that. हाँ साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको ये आना चाहिए था. करेक्ट, आप ऐसे बोल हाँ रहे हाँ हो. बराबर सर. Okay. यस करेक्ट. यस सर यस. Outside minus हाँ, आएगा और हाँ. वो equation same अभी हो आप जाएगा. काम करो, एक काम करो, जस्ट सॉल्व द सिस्टम क्विकली इन कैलकुलेटर. 1 -1 1 0, 20 40 30, सॉरी 40 30 20 and 30 40 -40, and just tell me. हाँ सर वही आ रहा है 1/20, 3/5 और 11/20. yes, sir. वही आ रहा है. आ रहा है वही ना, तो फिर छोड़ दो. फिर जो भी हमने किया वो करेक्ट है. ठीक है, नो नीड टू चेक दिस अगेन. ठीक है. सर वो नोड 2 का इक्वेशन कैसे है? क्या क्या नोड 2 का? एट नोड 2 हाँ ना. सर, वो हाँ. यस सर. अब ये दोनों सेम ही है ना, इसमें क्या. एट नोड 2 आप देखो ना, इन करंट I2 ही है और आउट करंट क्या है? I3 और I1. सर I1 कहाँ से आउट करें? कौन सा? सर I1 आउट है या इन है? I1 आउट है, यहीं पे भी ऐसा ही है I1. हाँ यस सर. राइट. दिस इज I1. ओके, सो आई थिंक इट लुक करेक्ट. ओके, बट मुझे लग रहा था कि फ्रैक्शन में आंसर इसके नहीं रहेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था. बट ठीक है, जो भी है उस हिसाब से हम रखते हैं, नो प्रॉब्लम. आई थिंक एक और लेता हूं मैं. आई थिंक विल टेक दिस. नहीं ज़्यादा टाइम लेगा. ये करते हैं, एक लास्ट करते हैं. ओके, विजिबल है ये प्रॉपर? Yes. Okay, so let's try this now. In solution. Okay, now just tell me what is our claim. क्या क्या कैलकुलेट करना है? I1, then
I2, I2 and I3. I3. Okay, only three variables are there, so it's easy. Okay. R1 की वैल्यू R1 की value, okay, it is not given ना, it has to be there. Let me take 1. Now I don't know. Okay, let me take 1. ठीक है? Okay, yes. हाँ. So now first let me apply by Kirchhoff current law. Okay. So at node. सर हाँ. सर वो जो V1 और V2 सर जो दो EMF के सोर्स है सर उनकी डायरेक्शन पता रहनी चाहिए ना सर, उसके बिना हम इक्वेशन कैसे वो करेंगे? ये वोल्टेज बोल रहे हो ना आप? हाँ ये सर सर वोल्टेज V1 V2 क्या है? वो define सर उनकी करके- वैल्यूज है पर डायरेक्शन चाहिए सर उनकी, उसके बिना इक्वेशन नहीं लिख सकते। सर केवीएल नहीं लगा पाएंगे, केसीएल लगा सकते हैं। हाँ KCL लगा सकते हैं। डायरेक्शन दी हुई ना वहाँ पे। नहीं नहीं सिर्फ okay. लेकिन ये सिर्फ शायद DCL से ये मिलेगा। बुक से कॉपी किया उन्होंने। सर एक ही इक्वेशन आएगा। सो लेट मी ओके लेट मी चेक, अभी मेरे पास नहीं है वो बुक, सो ये मैं चेक करके फिर इसमें करेक्शन कर देता हूँ। नहीं ऐसे नहीं कभी मेंशन होता ये, तो इंस्टेड ऑफ दैट लेट मी टेक सम अनदर क्वेश्चन। सेम ही है लॉजिक इसमें सब में, और जिसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैंने ये मैंने ऐड किया, सो लेट मी टेक दिस ओनली। सर उससे आ जाएगा पर नहीं प्रूव कैसे? नहीं वो चेक ही करता हूँ मैं प्रॉपर, आई डोंट हैव, मुझे उस पर गारंटी नहीं है ज़्यादा। चेक करता हूँ फिर करते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बुक नहीं है मेरे पास ना, तो मैं इमीडिएटली कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी एक सॉल्व करना है, सो विल टेक एनी रैंडम एग्जाम। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस नाउ इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये लेंदी हो जाता है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। नाउ हियर यू कैन सी देयर आर 3 नोड्स P, Q एंड R। ओके, तो यहाँ पे आपका करंट लॉ जाएगा। बिफोर दैट लेट मी राइट व्हाट इज अवर क्लेम। क्या क्या कैलकुलेट करना है? I3, बाप रे, I4, I5, इट्स लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट मी राइट द इक्वेशन। सो बाय किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड P, बोलो, एट नोड P, इन इक्वल टू आउट। I1 plus I3. इन क्या है? I1 I3, ओके, एंड इज इक्वल टू I2 ना? यस सर। ओके डन। लेट मी राइट एट Q। Q नोड कहाँ पे है? अरे सॉरी, Q नोड क्या है? I4 इन हो रहा है, सो I4 इक्वल टू I1 I5 ना? I1 plus I5 equal to I3. ठीक है, I1 प्लस I5 इज इक्वल टू I4। ओके, नेक्स्ट R नोड। R के लिए I3 plus I4. equal to I3 for I. Yes sir. I3 plus I4 equal to I2. I3 plus I4 is equal to I2 plus I5. I2 plus I5। okay, done। ठीक है, and now let me use voltage law। so by Kirchhoff's voltage law, it is only for a closed loop, है ना? so there are 3 closed loop you can see here। okay, let me decide the direction क्या क्या है इसकी। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में एंटी है, क्लॉकवाइज। और ये इस Clockwise डायरेक्शन में। ठीक है, Yes sir, right. ओके, नाउ लेट मी राइट फॉर फर्स्ट क्लोज लूप, है ना? सो फॉर फर्स्ट, अभी फर्स्ट आपका कुछ भी हो सकता है, आप कैसे भी दे सकते हो। लेट मी डिनोट दिस माय फर्स्ट, माय सेकंड, माय थर्ड। ठीक है, सो लेट मी राइट इट फॉर फर्स्ट क्लोज लूप। तो अभी इसकी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आई लिख लेता हूँ। बोलो, आई के लिए हाँ वोल्टेज 5 लिख लेता हूँ पहले, इज इक्वल टू व्हाट? 10 I5 ना, 10 I5, करेक्ट ना? Yes sir. So that implies I5 is 1/2. I5 हाँ, I5 हाँ, 1/2। 1/2। नेक्स्ट इज सेकंड,
सेकंड लूप के लिए वोल्टेज बैटरी आपकी 2 वोल्ट इज इक्वल टू i4 नहीं लेंगे क्या? हाँ i4 नहीं लेंगे। ये देखो यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नोड आ रहा है कंफर्म। आपको पता है कि i5 इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, i4 नोड के बाद देयर इज नो गारंटी। ओके सर। हाँ नोड अगर इन बिटवीन आता है ना तो वो करंट आप उससे पास हो रहा है ऐसे कंफर्म नहीं बोल सकते हो, ठीक है। बिकॉज i4 is splitting into i1 and i5. हाँ क्योंकि नोड की वजह से कहीं भी जा सकता है ना। हाँ आप कनेक्शन चेंज कर सकते हो ना इसके आगे। हाँ नेक्स्ट इज फॉर, ये समझ में आ रहा है सबको, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अच्छे से देखो उस रेजिस्टेंस से कंफर्म कौन सा करंट पास हो रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। इन बिटवीन नोड नहीं चाहिए, तो आप देखो इस करंट और रेजिस्टेंस में इन बिटवीन कुछ भी नहीं है। सो कंफर्म i5 ये इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, ऐसे मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं। ओके नाउ टेल मी फॉर क्लोज लूप सेकंड। 2 is equal to I1 plus 2 i2 I2. equal to 2. हाँ ये वन रेजिस्टेंस है, यहाँ से i1 पास हो रहा है। ओके 1 into i1 नेक्स्ट 2 i2. 2 i2 2 I2 equals to 2. हो 2 गया i2 ना? equals to 2. हाँ ठीक है डन इक्वल टू 2। नाउ लेट मी राइट इट फॉर थर्ड। 2 I3 4 4 equal equal to to 2 2i2. I3 plus 2 I2. 4 is equal to 2 i2. 2 I3 plus 2 I2. 2i3। हाँ 2i3 प्लस 2i2 ना। ओके डन Yes sir. ठीक है। हाँ अभी इनको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। सो लेट मी राइट द सिस्टम्स अगेन। देयरफॉर पहला इक्वेशन आपका था i1 माइनस i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज i1 माइनस i4 प्लस i5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन इज i2 माइनस i3 माइनस i4 प्लस i5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन हाँ सर i5 की वैल्यू पता है तो उससे पुट करके एलिमिनेट कर दीजिए ना, वो एक हाँ कम हाँ हो करने जाएगा वाला variable। करने वाला हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट बोलो। हाँ I5 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट इज i1 Plus प्लस 2I2 equals to 2i2 इज इक्वल टू 2 एंड इस पे ठीक है रहने देते 2i3 i2 plus i3 equal to 2i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 4। हाँ करेक्ट था आपका पॉइंट। अभी इसमें से मुझे i5 को एलिमिनेट करना है क्योंकि एक वेरिएबल मेरा लेस हो जाएगा ना। अगर i5 ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है तो आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। सो हाँ नाउ लेट मी चेंज फ्यू इक्वेशंस हियर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर आपका i1 माइनस i4 इज इक्वल टू -1/2 है ना। -1/2. इसमें क्या चेंज होगा i2 माइनस i3 माइनस i4 इज इक्वल टू -1/2। इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं। ओके हाँ अभी इसके आगे आप कर सकते हो। Yes sir. Yes sir. हाँ तो ये अभी मैं आपके लिए आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। ओके इन नेक्स्ट लेक्चर आई वांट दिस वैल्यूज i1 i2 i3 i4 i5 के मेरे पास है 5, ठीक है। तो ये और ये जो ऊपर के जो कुछ क्वेश्चन है उसमें मैं एक बार अच्छे से चेक करके ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दिस आई डायरेक्टली गॉट फ्रॉम अदर फैकल्टीज बट आई विल चेक। ओके अभी मुझे इसमें एक डाउट क्या था, ये नोड बोला है कि क्या है, दैट इज आल्सो कंफ्यूजन, ठीक है। सो लेट मी चेक दिस क्वेश्चन अगेन एंड ये क्वेश्चन 2 और 3 में कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो एक ही क्वेश्चन पेंडिंग है, बाकी ऑलमोस्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिए, Yes sir. ठीक है। Yes sir. Okay, so this is all about this electric circuit. MCQs इस पे कैसे आने वाला है? MCQs के लिए ये इक्वेशंस आपको आ सकता है एग्जाम में, है ना। और सिस्टम, व्हाट इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, व्हाट इज ए मैट्रिक्स, व्हाट इज AX इक्वल टू B सिस्टम, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। आई थिंक सिस्टम सॉल्व करने का पार्ट या ये पार्ट नहीं होगा, बट इसके ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया दैट पार्ट में भी देयर इन MCQ, क्योंकि सिस्टम का क्वेश्चन फिर सिस्टम में आने वाला। तो ऐसे टाइप के एमसीक्यूज आपको रहेंगे। नोड, राइट डाउन द इक्वेशन एट नोड P, राइट डाउन द इक्वेशन एट नोड Q, राइट डाउन द वोल्टेज लॉ फॉर दिस 3 क्लोज लूप 1, 2 एंड 3। ऐसे एमसीक्यूज आपको रहेंगे एग्जाम में।
ओके, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 2. ठीक है, यहीं पे हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है. स्टिल इफ यू फील, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स लग रहा है आप मुझे बोलो. ठीक है. एंड नाउ लेट मी स्टार्ट न्यू यूनिट. which is what is the title? I think matrix 2 ना. हाँ ये Yes. सर यूनिट 2 है ना. हाँ, यूनिट 2 now. The title is I think matrix 2. Correct है? मैट्रिक्स 2. यस Okay. यस सर. Yes, sir. So first we'll start with, there are many applications. These are all the applications of matrix only. ठीक है. Actually title maybe next time we'll change this. These are all actually the applications of matrix. तो इसमें बेसिकली आप क्या लर्न कर रहे हो? Applications. प्रीवियस यूनिट में भी वही था. ओके, applications of matrix. So let me start from a first application. जो पहला एप्लीकेशन आप लर्न करने वाले हो, which is eigen values and eigen vector. ये पूरा यूनिट इस एक कंसेप्ट पे डिपेंड है. अगर आपको ये नहीं समझ में आता, आगे के कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा. So the most important application of matrix is eigen values and eigen vectors. So later on we'll discuss what are its actual application. Okay, I think कल के एक MPBI बैच में मैंने इसका एक एप्लीकेशन दिया था. गूगल में जो पेज रैंकिंग होती है, हाँ, अगर आप गूगल में कोई वर्ड टाइप करते हो, है ना, और जो रैंकिंग में जो आपको पेजेस मिलते हैं रिलेटेड टू दैट वर्ड, सो दैट प्रोग्रामिंग इज डिपेंड ऑन ओनली आइगन वर्जन आइगन वेक्टर. उसके पीछे आइगन वर्जन आइगन वेक्टर की ही प्रोग्रामिंग है. ठीक है, तो उस हिसाब से वो रैंकिंग में आपको पेज मिलते हैं, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, क्लोज टू योर कीवर्ड, जिस कीवर्ड से कीवर्ड के साथ आप सर्च कर रहे हो. ठीक है. सो इन दिस वे देयर आर मेनी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस आर देयर ऑफ दिस आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर. सो विल डिस्कस लेटर ऑन. पहले कंसेप्ट, मैथमेटिकली कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं. ओके, सो इन दिस होल यूनिट लेट मी फिक्स माय मैट्रिक्स. ओके, सो लेट A be any स्क्वायर मैट्रिक्स. तो इस पूरे यूनिट में मैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूं. सो दिस होल टॉपिक इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट फॉर अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, तो नॉन स्क्वायर का इसके आगे रोल है ही नहीं. नाउ लेट मी गिव द डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज. ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? So a non-zero vector, a non-zero vector capital X is said to be, or it's called eigen vector of matrix A if there exists स्केलर का मीनिंग क्या होता है? रियल. नॉन जीरो नंबर. नॉन जीरो स्केलर नहीं, स्केलर मीन्स रियल नंबर. इफ देयर एग्जिस्ट अ स्केलर और रियल नंबर, इट्स अ रियल नंबर बेसिकली. इफ देयर एग्जिस्ट अ स्केलर लैम्बडा, if there exists a scalar lambda such that ax is equal to lambda x. अभी मुझे पता है ऐसे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो. ठीक है, सो क्या डेफिनेशन? अ नॉन जीरो वेक्टर x is called eigenvector of a matrix A if there exists a scalar lambda such that ax is equal to lambda x. This is the definition. Okay, अभी मुझे पता है आपको इससे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, बट लेट मी गिव वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करता. फॉर एग्जांपल लेट a is equal to 2049. Okay, so here you can see capital X is equal to
2, 0, okay, is the eigenvector of matrix A corresponding to eigenvalue lambda is equal to 2. ठीक है, ओके, सॉरी 1, 0, लेट मी करेक्ट इट, 1, 0. हाँ, एक्सप्लेन करता हूं क्या है. सी, अभी यहाँ पे 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे. ए मैट्रिक्स है, एक्स क्या होता है? वेक्टर. वेक्टर मीन्स कॉलम मैट्रिक्स. ओके, ऑलवेज रिमेंबर हियर ऑनवर्ड्स योर वेक्टर इज अ कॉलम मैट्रिक्स. लेट मी डिफाइन दैट आल्सो, तो आपको वो कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि क्या क्या नोटेशन आने वाले. लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एक्स बी अ कॉलम मैट्रिक्स. Yes. एवरीवेयर. हाँ, एक्स आपका कॉलम मैट्रिक्स है, तो वो कंफ्यूजन आपका होगा नहीं. सो अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स, इट्स कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए. मतलब आप एक एक्स को, in which case you can say x as the eigenvector of matrix A if there exists a scalar lambda such that ax equal to lambda x. अगर वो x वेक्टर लैम्बडा के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ax एंड लैम्बडा x ये दोनों अगर इक्वल आते तो ये आप x को क्या बोल सकते हो? आइगन वेक्टर, और लैम्बडा को क्या बोल सकते हो? आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू x. ये लैम्बडा चेंज होगा अगर आपका x चेंज होगा. Are you getting my point? So these are related. X को आप आइगन वेक्टर बोलते हो corresponding to आइगन वैल्यू लैम्बडा. ठीक है, लेट मी शो यू हियर. जैसे इस केस में ये आपका एक मैट्रिक्स है एंड यहां पे मैंने क्या बोला है? x which is equal to 1, 0 is the आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स corresponding to आइगन वैल्यू लैम्बडा. आप चेक कर सकते हो. ओके, प्रूफ. Sir, what's Sir, your voice happening? is breaking for 1 minute. Voice is breaking now. Please repeat, sir. Yeah, sir. Yes, sir. सब कुछ सुना नहीं. So voice break हो रही है, screen भी change. Okay, no problem. Okay, whether my voice is clear now? Yes. हाँ. Yes, sir. There is some problem today with the network. Okay, तो मुझे ये बोलो, what is my last point? क्या एक्सप्लेन कर रहा था मैं? वहाँ पे तो सर की हाँ, okay. So let me explain again. Definition क्या है? पहले वो simple language में सर explain स्क्रीन शेयर करिए. Matrix is one matrix. Okay, तो शायद डिस्कनेक्ट हुआ होगा. Okay. Is it visible now? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. So let me explain again. यहां तक तो हो गया था ना, x इक्वल टू लैम्बडा x तक. Yes, sir. हाँ. So a non-zero vector x is called eigenvector of a matrix if there exists a scalar lambda such that ax equal to lambda x. तो सिंपल है. आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होगा A, आपको उसके आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है. बट उन तीनों में क्या रिलेशन होता है, ये डेफिनेशन है. So if I want to say x as the eigenvector of matrix A corresponding to value lambda, so they must satisfy this condition ax equal to lambda x. या अगर आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन आ जाता है तब आप x को क्या बोल सकते हो? x is your eigen vector and lambda is your eigen value. This is the definition. If I want to say capital X as the eigen vector of matrix A corresponding to eigen value, this is called as eigen value. Okay, there exists a scalar, sorry, lambda such that this. So let me add that statement also here. Where lambda is called eigenvalue. Okay. Sir, that means, sir, in short, your concept is that, sir, if we consider any vector x, then if there another exists a matrix, lambda which satisfies this, then we call it as eigenvalue. अभी तक ग्राफिकली मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं. बट मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, एक्स एक वेक्टर है और लैम्बडा एक नंबर है, रियल नंबर है. ठीक है. If I want to say x as the eigen vector
corresponding to this number, then they must satisfy the x equal to lambda this condition. समझ में आ रहा है अभी? समझ में आ रहा है? Yes sir, got it. They must satisfy this condition. A matrix x vector lambda. अगर आपको x को आइगन वेक्टर बोलना है ऑफ दिस मैट्रिक्स A करस्पॉन्डिंग टू आइगन, मतलब ये x जो होता है वो लैम्डा पे डिपेंड होता है, x वैरी होगा लैम्डा वैरी होगा, ठीक है. सो इफ देयर एग्जिस्ट अ लैम्डा व्हिच सैटिस्फाइज कंडीशन x इक्वल टू लैम्डा x, देन वी कॉल दैट लैम्डा एज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A. Yes sir. सर मतलब अगर एक मैट्रिक्स को सर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और सर अगर एक नॉर्मल रियल नंबर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेम मैट्रिक्स आ रही है तो सर उसको बोलेंगे ना. वेरी गुड. ओके ओके, विद दिस डिफरेंस x इक्वल टू अगर सेम वेक्टर मिल रहा है विद द डिफरेंस ऑफ लैम्डा ओनली, देन वी कॉल इट एज आइगन वेक्टर, देन वी कॉल इट एज आइगन. Yes sir. सो लेट मी शो यू दिस. Sir, vector x, sorry, matrix x is always a column matrix, no? Yes, Yes it's sir. always column It is a matrix. vector, so it will be always. Okay. ठीक है. सो लेट मी शो यू दिस द होल प्रोसेस हियर. ये एक मैंने मैट्रिक्स लिया है, ये एक x लिया है और एक लैम्डा लिया है. ओके हाँ. नाउ लेट मी चेक व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस. तो उसके लिए मैं ax कैलकुलेट करता. सो ax इज नथिंग बट a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 1 0. व्हाट इज योर आंसर? 2 and 0. 2 0. ठीक है, यू कैन चेक द प्रोडक्ट. ठीक है हाँ. कैन आई राइट दिस एज 2 times 0, 1, सॉरी 2 times 1, 0. कैन आई राइट लाइक दिस? Yes sir, yes sir. दिस yes, आई sir. कैन ट्रीट Yes, एज लैम्डा और फिर से मुझे वही x मिल रहा है ना. Yes sir. Yes. Therefore, in Yes, this sir. case, this is my eigenvector Yes. and this is my eigenvalue. Eigen value. आइगन वैल्यू. ये मैंने बस आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया है. ओके बाद में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ग्राफिकली ऑल्सो. ग्राफिकली इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. लेट मी फर्स्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट. ओके तो अभी ये तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है और मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर क्या होता है. ठीक है. सो इफ आई गिव यू एनी मैट्रिक्स and if I give you any x and if I give you lambda corresponding to this x, then there must exist, then they must satisfy this relation. ठीक है. हाँ. Yes, sir. अभी आप कैसे जाने वाले हो? क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा? आप पहले मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने वाले हो. मतलब आप पहले सारे ऑल पॉसिबल लैम्डास आप उस मैट्रिक्स के कैलकुलेट करने वाले हो. यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी मैंने दी है. तो इस ए मैट्रिक्स का, ये जो ए मैट्रिक्स है उसकी एक आइगन वैल्यू क्या थी? 2. करेक्ट ना? 2. Yes. 2 इज वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स ए. तो मैं क्या करने वाला हूं? फर्स्ट आई विल फाइंड ऑल पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड देन करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू आई विल फाइंड आइगन वेक्टर. और बाद में आप चेक करो उनमें यही रिलेशन रहेगा. So at the end मुझे क्या करना है? I want to find all possible eigen values and all possible corresponding eigen vectors of a given matrix. Are you getting my point? मुझे करना क्या Yes, sir. बेसिकली ऐसा जिन केसेस में होता है x इक्वल टू लैम्डा x, जितने पॉसिबल वैल्यूज के लिए होगा वो सारे पॉसिबल वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करने हैं. दैट इज माई एम और दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक. ओके सो लेट मी let me give you a few remarks after this. See, for maths I will always utilize this 10 minutes, so please excuse me for this. I will end 2-3 minutes earlier, नहीं तो फिर हमारा सिलेबस होगा नहीं जिस स्पीड से हम जा रहे हैं. Sir, for that aim, sir, we have to always consider matrix A or lambda as constant, right, sir? Will not consider this always. ये आपको कैलकुलेट करना होगा. ये मैंने आपको डायरेक्टली दे दिया है. यहाँ पे x ऐसा है और लैम्डा ऐसा है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. ओके आपका एम क्या है पता है क्या? आप क्या करने वाले हो? ये अगर मैं इरेज कर देता हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं बस आपको ये इंफॉर्मेशन दूंगा एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू टेल मी व्हाट आर इट्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. डिफिकल्ट लग रहा है ना अभी आपको क्वेश्चन? मैंने रेडीमेड दिया था अभी आपको. ठीक है. इफ आई इरेज दिस देन यू थिंक हाउ यू फाइंड such a lambda or such a x which satisfies this. यही तो आपका एम है. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ. Yes sir. तो ये आपको कैलकुलेट करना है. आपको उस हर एक मैट्रिक्स का लैम्डा कैलकुलेट करना है और उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग वो x भी कैलकुलेट करना है. दैट इज योर एम. सो विद दिस एम नाउ वी आर प्रोसीडिंग. ओके सो बिफोर दैट लेट मी डायरेक्टली बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक लेट मी
explain what is the theory or how you actually find those eigenvalues and eigenvectors. मतलब आप वो लैम्बडास कैसे कैलकुलेट करोगे, आप वो x कैसे कैलकुलेट करने वाले हो. तो उसके लिए मुझे ये पता है, what I know, if A is any matrix, any square matrix, and lambda is the eigenvalue. आप रिवर्स भी यूज कर सकते हो. x is the eigenvector corresponding to lambda, और lambda is the x is the eigenvector corresponding to lambda, और lambda is the eigenvalue corresponding to x. कोई भी स्टेटमेंट आप यूज करो, and lambda is the eigenvalue corresponding to x. तो इन तीनों में क्या रिलेशन आता है? अगर मैं आपके पास एक मैट्रिक्स देता हूं, एक आइगन वैल्यू देता हूं और उसके करस्पॉन्डिंग x देता हूं, तो उन तीनों में क्या रिलेशन है? देन दिस इंप्लाइज, देन दे मस्ट सैटिस्फाई दिस कंडीशन. Which condition? Ax is equal to lambda x, क्योंकि यह डेफिनेशन है. दिस योर डेफिनेशन. ठीक है. हाँ, तो यह डेफिनेशन. अब यही रिजल्ट यूज करके मैं आपको यह एक्सप्लेन करूंगा कि आपको लैम्बडा कैसे मिल सकता है. यूजिंग दिस, नाउ लेट मी, आई विल ड्राइव वन फॉर्मूला बाय विच यू विल गेट द आइगन, ऑल पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स. ठीक है. सो कैन आई राइट दिस एज ax minus lambda x equal to 0? कर सकते हो ना आप ऐसे? 0 is the matrix. Yes sir. Okay. Can I take x common? When I take x common, can you tell me what is in the bracket? A minus lambda. A minus lambda. Correct है क्या ये? Yes sir. Lambda I. Very Lambda good. I. lambda है. ये नंबर्स नहीं है, ये मैट्रिक्स है सारे. तो जब x कॉमन आएगा, उसके जगह पे वहां पे क्या आता है? Yes sir. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दोज हु डोंट नो, जब आप मैट्रिक्स में रहते हो, फॉर एग्जाम्पल जिनको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप यहां से 2 कॉमन लेते हो तो नंबर्स में जो नंबर आप कॉमन लेते हो उसके जगह पे आप 1 लिखते हो ना? Yes sir. हाँ. बट मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप a कॉमन लेते हो तो a के जगह पे क्या आता है? I. Identity matrix. ओके. I, और yes, यहां पे b इंटू a इनवर्स. ठीक है. रिमेंबर दिस, मैट्रिक्स में ये चेंज होता है. नंबर्स में 1 आता है बट मैट्रिक्स में आइडेंटिटी आता है वहां पे. ठीक है. सर ए इनवर्स भी आएगा ना? हाँ. पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ना यार, प्री और पोस्ट तो कैसे भी लिख सकते हो ना. नहीं, ए मैंने कॉमन लिया है. ठीक है ना, करेक्ट लिखा है ना मैंने, क्या प्रॉब्लम था? सर पहले A ए इनवर्स inverse आएगा into ना? B होगा ना सर? A inverse into B होगा. Okay, हाँ, ये बोल रहे थे ना. ठीक है. हाँ. ओके. Yes sir. बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई हियर, हाँ करेक्ट, क्योंकि ये ए यहाँ पे था. अगर प्रीवियस केस में जाना था तो मुझे पीछे से लेना होगा. दैट इज व्हाट यू वांट टू से. Oh, करेक्ट right, ना? sir. ओके. हाँ ठीक है. ओके. या सो लेट मी रेज दिस. एट देन मुझे ये एक्सप्लेन करना था कि मैट्रिक्स में आप कॉमन लेते हो तो क्या चेंज होता है. सो इफ हियर इफ आई टेक x कॉमन इन ब्रैकेट यू विल गेट दिस. करेक्ट है? यस सर. अभी मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिस पे ये पूरी थ्योरी डिपेंड है. ओके. इसके बाद मैं डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0. यू टेल मी व्हाई. एंड हियर विल स्टॉप टुडे. यू टेल मी व्हाई. Determinant of matrix S is a constant. कांस्टेंट. देन व्हाट? मैंने तो 0 लिखा है डायरेक्टली. कांस्टेंट में नहीं, वो 0 होगा ऑलवेज. ऑलवेज वो 0 होगा. एंड व्हाई? दिस इज माय क्वेश्चन. Sir, to satisfy the condition. सर बिकॉज नहीं, सर बिकॉज x is always gonna be a non-zero इट इज vector. नॉट ऑलवेज 0. डोंट कंपेयर विद द रियल Sir, नंबर्स. because x is ये not कोई a ऐसी square सिस्टम नहीं है. matrix. हाँ. X is not a square matrix, so its determinant is not defined. नो नो नो, आप नंबर जैसे कंपेयर कर रहे हो. आप ऐसे देख रहे हो ना, 2 into 3 equal to 0. ये तो इन दोनों में से एक 0 होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. वो अलग है, ये अलग है. ओके. सो लेट मी गिव यू रीजन फॉर दिस जो आपने लर्न किया. Sir? हाँ. यस. एनीवन? I think it's because X is a matrix and we have a number on the other side. No, it is also matrix. Everything is matrix here. Very well, sir. हाँ. 0 भी मैट्रिक्स है, या लेफ्ट साइड में भी मैट्रिक्स है, राइट साइड में भी मैट्रिक्स है. या सो what I will do, just for a writing purpose, let me consider this as B.
So this become bx equal to 0. Huh? yes sir. So what is this? ये क्या है? You already learned in first unit. What is this? It is a homogeneous. Yes sir. It's homogeneous. It's a homogeneous linear system ना? Yes X sir. कॉलम था, राइट साइड में जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स है. Got it, sir. हाँ. So it's a homogeneous linear system. उसमें x क्या है आपका? मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा है. मुझे पता था आपका फोकस नहीं होगा. What is my x? Non-zero Non-zero vector. नॉन जीरो वेक्टर. हाँ. So let me come again here. मुझे आप ये बोलो, Yes, sir, got it. होमोजीनियस में दो ही टाइप के सॉल्यूशन है. If it is a homogeneous Yes, sir. system, there are only two Unique. possibilities. One is unique unique solution and second is infinite. or infinite. करेक्ट. यूनिक अगर सॉल्यूशन आता है तो आंसर क्या होता है? Zero, sir. जीरो. क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम में इफ दैट सॉल्यूशन इज यूनिक देन इट मस्ट बी जीरो सॉल्यूशन. Yes sir. बट मैंने x क्या एज्यूम किया है? Non-zero vector. सो इफ इट इज नॉन जीरो तो मुझे सॉल्यूशन कौन सा मिलना चाहिए? Infinite. Always infinite. इनफाइनाइट मिलना चाहिए. एक क्या था आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना? Yes, तो sir. मुझे ये बोलो, Yes, sir. कैन आई टेक डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो? अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो लेता हूं, ए की रैंक क्या आएगी? Sir, 3 आएगा ना सर? नहीं, जो ऑर्डर हो गया वो आएगा. हाईएस्ट ऑर्डर है ना. अगर मैं डिटरमिनेंट ही नॉन जीरो लेता हूं तो ए की रैंक क्या आएगी? 3 आएगी. सर ये ओके. sir, अगर yes, मैं नॉन जीरो लेता हूं तो ए की रैंक 3 आएगी. रैंक 3 आती है तो मुझे सॉल्यूशन क्या मिलेगा? Unique solution. यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना. n बाय n में यानी वेरिएबल्स रहेंगे ना. हाँ. तो अगर Yes, sir. इसलिए मुझे इसको क्या लेना होगा? जीरो ही लेना होगा. Yes sir. ठीक है. सो आई नो कुछ स्टूडेंट को ये इमीडिएटली नहीं समझ में आएगा बट आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर्स. ओके, हियर विल स्टॉप टुडे. Yes sir. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. Thank you I sir. will explain this part in detail in the next lecture. Okay. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.